आधी रात को देखो मैं क्या खा रही हूँ। 11:10 हुए हैं और हम खा रहे हैं अनारदाना। थोड़ी सी खट्टे हैं, जैसे कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, इस तरह अनार खट्टे हैं। कहावत सुनी है ना, एक अनार 100 बीमार। Mashallah. Mangoes in winter, man. We got the mangoes from the South Africa. And South Africa Zindabad. Mango, mango, Zindabad. Everybody, mango, mango. All this mango for £1 in our market. Oh, people, go, get some mango. Yeah, everybody, mango, mango, South Africa market. Look at this. This got bruised. And there was nearly 20 bucks left. Go, get some mangoes. Here we got this much mangoes. South African mangoes, you cannot compare with Pakistani mangoes because these are not very sweet, but it is mango, by the way. Hello guys, good morning. Guess what? We are on our favorite place. We drive so far away to come in this park because this is a precious park where my children used to play. So here we are. Today's beautiful sunny day, as you could see in front of you. Lots of cars coming, so you need to be careful when you cross the road because there is a zebra crossing and lots of people with their young children came to the park. Wait, this was my turn. Look, if this car stopping or not, nonsense. Now I am going to cross as slow as my watch out, they are going to hit me. So look, there are some people. We are entering in this park. So marvelous. I am so happy and excited. Here we go. There is a gate and people are playing here, and there is a playground and we're going to go in. There is a zip line which is my children's favorite, and we take the zip line up to the top and come down sliding. Children are playing there and they are in pink coat and here, and I'm going to have a go. And there, if it goes fast, if you give push, you're going to go very fast. So now I'm going to show you something else. When it goes up to end, it just bang. Oh, it's going round and round. It can hit me. So can you see it's just going round and round. Here there is another thing. This is for cycles or roller skating things, rollerblading or roller skating. You come with a force, with speed, and go up, and then you go up here. If you stop, it's going to be hard. Then you look all around, and there is beautiful park around, and we need to go back carefully. 1 minute. Here we go. Same here, going up and down. In this park, they made this table tents. This table is made with cement, very strong
Even somebody need to perform, they can stand up and perform, or have a family dinner. Is in a park. You can have fun as much. And this is like around this. You sit there and go round and round. A beautiful park, beautiful day, and I hope you're going to enjoy. We're going to enjoy this as well. And there are some steps. Some children come with singing, drumming, and performing and showing their skills or art. They sit here or stand up. Just going on these steps actually is very good exercise, because you're making your legs strong, going up and down. And some children just want to sit here and have a go. Had such a fun, and bye bye park, see you later. We're going to come some other day, and it's a beautiful day, everyone. When day is nice, everybody wants to come and play and do shopping. Saturday especially is shopping day. बस मेरे डिलीवरी आई है सारे मीट की. अभी जो सारा मीट है वो अच्छे से ट्रेयों में रखा जा रहा है, सजाया जा रहा है. वहाँ पे वो पाए हैं, ये मेरे ख्याल किडनीज हैं, ये चिकन को जो थोड़ा सा मैरिनेट किया हुआ है, फिश मसाला, वो पोटे हैं, कलेजी उसके आगे ऊपर पड़ी हुई है, और ये चिकन लेग्स हैं, बेबी चिकन, और इसी तरीके से जो चिकन क्यूब्स हैं, रोस्ट का चिकन है, ये बोनलेस चिकन इन ट्रेयों में पड़ा हुआ है, और यहाँ पर चिकन लेग्स ड्रम्स हैं. ये पूरा चिकन है, जिसने किसी ने पूरा चिकन लेना है. और ये बारबेक्यू करने के लिए तैयार किया गया है. इसके जो पर हैं ये ऊपर से जलाए गए हैं. और ये लैम है, ये लैम का मीट है, जो इस तरह रखा है. सुबह सवेरे बहुत ही नहायत तरीके से, सलीके से सारी ट्रेयों को अच्छे से साफ़ करके तो इनको रखा जाता है. फिर सारा दिन इस तरह सर्व करते हैं कस्टमर्स को. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड, ब्रदर्स, सिस्टर, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. यहाँ पर मैं कुछ इंग्रेडिएंट जो हैं वो तैयार करके रखे हुए हैं, काट के संवार के. तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा. पिज़्ज़े के लिए सबसे पहले मैं 1 कप जो है सेल्फ राइजिंग फ्लावर ये डालूँगी. सेल्फ राइजिंग फ्लावर में 2-3 चम्मच जो है योगर्ट के जाएंगे. 2 अंडे भी इसी में डलेंगे. ये अंडे मैंने इसमें इसलिए रखे हैं कि ये इधर रेड़ के टूट ना जाएं, तो इसलिए मैंने इनमें रख दिए हैं, जो वॉशिंग मशीन में हम डालते हैं प्लास्टिक की. तो इसके अलावा ये चिकन लेके आई हूँ, थोड़ा सा 1 पाव 250 ग्राम. तो जिसमें हम मिक्स करेंगे नमक, गरम मसाला, मिर्च और योगर्ट. इसको मैरिनेट करके रख देंगे, और फिर इसको फ्राई पैन में हल्का सा पका लेंगे अच्छे से. तो फिर ये गार्निश करने के लिए पिज़्ज़े के ऊपर तैयार हो जाएगा. यहाँ पे हमने चटर चीज़ जो है वो काट के बारीक बारीक रख ली है. सुर्ख प्याज है 1 मैंने काट लिया है. जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होंगे वो ठीक है, जो नहीं इस्तेमाल होंगे वो हम उसका ऑमलेट बना लेंगे. और यहाँ पे मैंने ग्रीन पेपर, रेड पेपर, येलो पेपर, और 1 टमाटो, और बेबी स्पिनच, पालक, और थोड़ा सा क्यूकम्बर काट के रखा है. तो ये सारी चीज़ें मैं जब लाइव करती हूँ टिकटॉक के, तो ये मैं बना के काट के सवार के रखती रहती हूँ, और जब बनाना होता है फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता. तो अगर मेरे पास कोई कैमरा मैन हो तो वो मेरा सारा कुछ रिकॉर्डिंग करे. यहाँ पे मैंने सनफ्लावर कुकिंग ऑयल रखा है, ये भी जाएगा उसमें सेल्फ राइजिंग आटे में. तो मैं 1 कप जो है सेल्फ राइजिंग आटा वो डालूंगी, तो उसमें अंडे डालूंगी, 2-3 चम्मच उसमें योगर्ट डालूंगी, और थोड़ा सा तेल डालूंगी. नमक भी चाहे तो आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं. और उसका डो बना के रख दूंगी. फिर मैं ये सारा जब बेस बन जाएगा तो ये चिकन तैयार कर लूँगी, और चिकन मैरिनेट करके उसको तैयार करने के बाद तो हम पिज़्ज़े के ऊपर डालेंगे. और ये बच्चों को
चांस देंगे कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक डालें पिज़्ज़े पे जो कुछ जितना डालना है। फिर सबसे टॉप में ऊपर चीज़ डाल के तो उसको ओवन में रख देंगे। तो यह बन जाएगा जी होम मेड पिज़्ज़ा। पिज़्ज़े के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो आपके सामने मैंने इधर वर्क टॉप पे रख दी हैं। कुकिंग ऑयल, चिकन क्यूब्स, ओनियन, बेल पेपर्स, टमाटो, स्पिनच, क्यूकमर, चीज़, मसाला, एग्स, प्लेन फ्लावर, और बाकी आपको ओवन चाहिए होता है, ट्रे वगैरह चाहिए होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीक़ेकार पसंद आएगा। आपने मेथड इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। यकीन करें, बेशक आप कीमा डालें, बेशक आप ये डालें, आपका पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बनने वाला है इंशाल्लाह। अभी मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। ये मसाला वगैरह अच्छे से में जज़ब हो जाएगा तो मैंने पैन में हल्का सा तेल भी डाल लिया है, तो उसमें ये स्लो आंच पे पक जाएगा। तो पहले मैरिनेट करके कोई आधा घंटा जितने भी देर रख सके तो वो बेहतर होता है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि प्लेन फ्लावर डाला है 1 कप, जैसा मैंने आपको बताया था। उसमें 2 चम्मच योगर्ट के डाले हैं, 2 अंडे डाले हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे इसको मिक्स करके इसका डो बना के रखना है। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंडे डले हुए हैं। और जिस तरह केक होता है ना, केक रेज़ होता है, इसी तरीके से ये रेज़ हो जाएगा और ये बहुत ही क्रंची किस्म का बनेगा। हल्का सा नमक भी डाला है, आधी चम्मच, क्योंकि ज़्यादा नमक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये बेहतरीन तरीका है आपका घर में पिज़्ज़ा बेस बनाने का। तो फिर आप इसको पैन के ऊपर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, जिस पे आप रोटी बनाते हैं हॉट प्लेट पे। और फिर जब एक साइड पक जाएगी उसी साइड में आप टमाटो प्यूरी डालेंगे और फिर वो आप बाकी चीज़ें उसके ऊपर लगाएंगे। जैसा जैसा मैं करती जाऊंगी, अगर मुझसे हो सका तो वो मैं आपके लिए रिकॉर्ड भी करती जाऊंगी ताकि आपको बेहतर आइडिया हो सके। जो न्यू स्टार्टर होते हैं उनको होता है आजकल हर बंदा यूट्यूब पे कुकिंग सीख रहा होता है, कर रहा होता है। तो फिर हम भी टाइम के साथ साथ अपने आप को बता रहे हैं। अगर हम बच्चों को कहें ना आओ खड़े हों, ये करें वो करें और कैसे करने हैं, तो वो कहते हैं हमें ना बताओ, हम खुद ही यूट्यूब से देख के सीख लेंगे। तो फिर हमने सोचा कि अच्छा ठीक है, ऐसा तो ऐसा ही सही, तो हम खुद ही रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे पिज़्ज़ा देखने का तरीका देखना है कि कैसे बना है, वो भी जाके यूट्यूब पे हमारा चैनल या किसी और का चैनल जाके चेक कर ले, देख ले। और जब वो टेस्ट होगा हमारा होगा तो हमारा टेस्ट भी किया हुआ होगा फूड, तो फिर उनको अप्रिशिएट करेंगे कि ये चीज़ हमने ट्राइड एंड टेस्टेड की है, ट्राइड एंड टेस्टेड। तो फिर वो दोबारा उसी मेथड को इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपको टाइम के साथ साथ खुद को तब्दील करना पड़ेगा। ये देखें डो में तब्दील हो रहा है, तो फिर हम इसको करके रख देंगे थोड़ी देर बेस बना के। ये हमारा संडे डिनर जो है बन रहा है। हमने 2 कप जो है इसमें कप पानी डाला है, तकरीबन 1.5 लीटर इसमें पानी ज़रूर होगा। और इसमें तकरीबन 300-400 ग्राम जो है 500 ग्राम इसमें गुड़ डाला है। ये हम गुड़ लेके आए थे आज की दुकान से। जब हम लेंगे चिकन तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा तो इसमें बटर डाला जाएगा आधी टिक्की, क्योंकि आधा किलो से ज़्यादा चावल हैं तो मीठा भी चाहिए होता है। ये खुद ही इसकी चास बन रही है। इधर हमने चावल को भिगो के रख दिया है। जितनी देर चावल भीगे रहेंगे उतना ही अच्छा जो है चावल जो है अच्छा पकता है। जो तरीक़ेकार है आजकल हम मीठा चावल बनाने के लिए भी ऐसे ही बनाते हैं जैसे नमकीन चावल बनाते हैं। पानी जो उबाल के बनाना वो सारा स्टार्च जो है वो चला जाता है, प्रोटीन जो है वो काफ़ी ज़ाया होती है। तो हमें कभी कभार ही बनाते हैं, इसलिए हम जो चावल है ना इस तरह भिगो के रख देते हैं
और फिर मेजर करके जितने चावल हो उससे दुगना पानी डालते हैं, उसमें जो कुछ डालना हो डाल के चावल उसमें डाल देते हैं और हल्की आंच पे पकने देते हैं और बेहतरीन चावल बन जाते हैं। और ये पाकिस्तानी बादशाह बासमती चावल हैं, बहुत ही अच्छे पकते हैं। देखेंगे जो हमने चिकन है वो रख दिया है, हल्का सा तेल डाला है और मैरिनेट करके जो रखा हुआ था, तो अब ये स्टीम के साथ खुद ही पक जाएगा तो फिर ये भी तैयार हो जाएगा ऊपर डालने के लिए पिज़्ज़े के लिए। आप इस तरह पैन में इसको फैला देंगे ना तो ये फुल्ली पक जाएगा और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे तो ये ज़्यादा ही अच्छा पक जाएगा, क्योंकि फिर ये सूखता नहीं है, ड्राई नहीं होता है। इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया और देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहा है। जो चिकन होता है वो अपना पानी जो है वो छोड़ देता है और अपने पानी ही में पक जाता है, क्योंकि ये चिकन थाइस है जिसको चिकन नगेट्स भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक रहा है, अभी अंदर से कच्चा होगा, बाहर से ये पक रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 पिज़्ज़े बना लिए हैं, बहुत ज़्यादा बना के भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आपने इसको बेल लेना है। हमारा जो बेस होता है जो हम बनाते हैं ना ज़्यादा मोटा होता है ना ज़्यादा पतला होता है, क्योंकि इसमें मैंने तेल भी डाला है, योगर्ट भी डाला है और अंडा भी डाला है, अंडे 2 डले हैं, इसलिए इसका येलो रंग है। और ये जो बहुत ही इसकी क्रंची बेस बनेगी, जिस तरह आप केक खाते हैं ना बिल्कुल उस तरह होगा, लेकिन मीठा नहीं होगा, प्लेन होगा। तो आप अकेला भी अगर पिज़्ज़ा खाएं ना तो ये बहुत ही अच्छा बन जाता है। अब ये देखेंगे जो ऊपर वाली साइड है वो मैंने तवे पे लगा देनी है, और लोग तो इसी तरीके से ऊपर लगा देते हैं। ये ज़्यादा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना मीडियम साइज सा बना लेना है। ये मैंने प्री हीट तवा रखा है, यहाँ पे देखिए मैंने तवे को पहले से ऑन कर रखा है। जब ये एक बेस एक साइड से बन जाएगा ना तो ये तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने बाकी जो है बेस तैयार कर लेने हैं पिज़्ज़े के। आपने जो तवे पे साइड पहले गई थी उसके ऊपर ये टमाटो प्यूरी डाल लेनी है। ये देखिए मेरे हाथ में टमाटो प्यूरी है और उसको चम्मच के ज़रिए या बटर नाइफ के ज़रिए अच्छे से स्प्रेड करना है। आग को स्लो रखें, अगर आग बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो ये जल्दी अच्छे से पकेगा नहीं। आप देख सकते हैं कि हम किस तरह जो टमाटो प्यूरी है वो इसके ऊपर लेप कर रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो टमाटो ज़्यादा पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है। इसके बाद वो गार्निश करने के लिए उनको खुद दिया जाएगा, जैसे भी आपने उन्होंने गार्निश करना है वो कर लेंगे। तो इंग्रेडिएंट जो हैं मैंने आपको दिखा दी हैं, आप सारी ये है घर में लेके रख लें और अपने बच्चों के साथ खासकर वीकेंड पे यहाँ जब भी आपको टाइम मिले कि अच्छे से फ़न कीजिएगा। बच्चे भी लर्न करेंगे, आपकी कंपनी भी इंजॉय करेंगे, बहुत कुछ लर्न करने को सीखने को मिलेगा। जो कुछ खाना पसंद करना है तो उसको सीखना भी है पकाना कैसे है। जिसने रहना है तो उसने अपना रूम भी साफ़ करना है, जिसने टॉयलेट जाना है उसने टॉयलेट भी साफ़ करना है। ये बेसिक स्किल्स होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जो इंसान को सीखनी होती हैं और करनी होती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये तरीक़ेकार पसंद आता होगा। यहाँ पर देखें जो पानी उबल रहा था हमने इसमें चेक करना है कि सारा जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो गई है। और ऐसे देखें कि अगर चम्मच में कोई चीज़ नहीं आ रही तो आपने ऐसे डाल के देखना है। जब तार बन जाएगी ना, यानी मतलब गाढ़ा हो जाएगा, स्ट्रेट इसकी तार नीचे गिर जाएगी, तो तब ये जो इसकी चास है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा टाइम है इसमें, तो इसको ऐसे चेक करते हैं कि ऐसे डालें तो जा कहीं पे डालें आप कतरा, तो अगर वो जम जाए ना, स्पिल ना हो, इधर उधर बहे ना, तो वो उसका मतलब होता है वो चास रेडी है। तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे और बटर डालेंगे। पर देखें कि जो पानी था वो उबाला आ रहा था, गुड़ वाला पानी जो है चास बन गई थी, और उसमें हमने बटर भी डाल दिया। तकरीबन हाफ टिक्की जो है 250 ग्राम में से हाफ हमने इसमें डाल दी है बटर की, और इसमें अब चावल भी डाल दिए हैं। अब हम वेट करेंगे जब दोबारा उबाला आ जाएगा और पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, तब हम इसके पे ढक्कन लगाएंगे। अगर अब ढक्कन लगाएंगे तो सारा पानी जो उबल को बाहर स्पिल हो जाएगा, मीठा भी बाहर निकल जाएगा, बटर भी बाहर निकल जाएगा, जो अच्छा आइडिया नहीं है। तो इस तरह ही आपने इसको ओपन पकाना है। जब पानी खुश्क होने लगे फिर ढक्कन लगाना है ताकि वो चावल अच्छे से पक जाए। यहाँ पर देखिए कि हमने जो रोटियां हैं, जहाँ बेस हैं पिज़्ज़े के, उसको ऊपर हम इस तरह जो टमाटो प्यूरी है वो लगा रहे हैं।
तो मुझे माँ याद आ रही है, जब माँ सुर्ख मरब्बे की मिर्च को ला के उसको कूंडी से कूट के इस तरह पीसती थी। उसमें लहसुन डाला होता था अम्मी ने, उसमें धनिया डाला होता था, और उसमें सुर्ख मिर्च होती थी, हल्का सा नमक, और इस तरह रोटियों के ऊपर चोपड़ के और उसकी देसी घी से उसको रोटियों को चोपड़ देती थी। इतनी मज़े की लगती थी ना, तो मुझे यही वो चीज़ें याद आती हैं। माँ बाप कभी नहीं भूलते, हर रोज़ हर टाइम याद रहते हैं। इसी तरीके से जैसे माँ बाप हमें याद रहते हैं जिन्होंने हमें, अल्लाह ने हमें उनके ज़रिए पैदा किया, इसी तरीके हमें अल्लाह को भी याद रखना चाहिए हर टाइम हर काम में। तो ये देखें, ये पिज़्ज़े के बेस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इनके ऊपर गार्निश कर दिया जाएगा। स्कूल में काम कर करके ना, तो वो बच्चों के जो सॉन्ग हैं, राइम्स हैं, वो याद हो गए हैं। तो इस तरह टमाटो पूरी जो है ना, आपने अच्छे से स्प्रेड कर देनी है सारी रोटी के ऊपर। टमाटर पाने जिथे जिथे खाली जगह होंगी ना, उत्थे उत्थे इन्होंने पाईदा। पहले पेपर पाने, ये पालक आ, बेबी पालक। अल्लाह दिया बंदिया बेहतरीन पकूगा। और की चीज़ चाहिए? सुर्ख मिर्च चाहिए नहीं, चलो होने दे उत्ते आ ढक्कन जरा ना, ये बंद कर देना, ऊपरों नीचे हीट दे नाल इन्हें पक जाना, रेडी होना काम। चीज़ तो नहीं ना पानी तुसी? जैसे ऐसे पानी हो जाए, ऊपर इलायची का पाउडर भी डाला है, तो तब इसके ऊपर ढक्कन लगाना है, स्लो आंच कर देनी है, फिर आधा घंटा पौना घंटे पे चावल तैयार हो जाएंगे।